اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بطخ کا عذر پیش کرنا۔ بطخ نہایت پاک و پاکیزہ ہو کر پانی سے نکلی اور پرندوں کے مجمع میں اس کا لباس سب سے عمدہ تھا، سیاب جمع ثوب کی، پہننے کے کپڑے۔ بطخ نے کہا کہ دونوں جہانوں میں مجھ سے زیادہ پاک و پاکیزہ چہرہ کسی اور کا نہیں ہے۔ میں ہر وقت نہایت اہتمام اور درستی سے وضو کرتی رہتی ہوں اور پانی پر نماز پڑھ کر سجدہ کرتی ہوں۔ میری طرح بہت کم پرندے پانی پر تیر سکتے ہیں۔ اب میرے کرامات اور معجزوں میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ میں اپنے عمدہ مشورہ اور عقل کی وجہ سے پرندوں میں سب سے زیادہ پاک اور زاہد ہوں۔ میں ہر وقت پاک کپڑے پہنتی ہوں اور پاکیزہ مقام یعنی پانی میں رہتی ہوں۔ میں دنیا میں بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی کیونکہ میں پیدا ہی پانی میں ہوئی ہوں۔ اگرچہ میرے دل میں غم و رنج کی ایک دنیا آباد ہے، لیکن اب میں نے اپنے ہمدم اور دوست کے خیال سے دم کو پاک کر لیا ہے، یعنی اب میرے دل میں دوست کا خیال نہیں رہا۔ اس ندی میں ہمیشہ پانی رہتا ہے، میں بلا خشکی میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ چونکہ میری زندگی ہی پانی پر منحصر ہے، اب میں پانی سے کیسے علیحدہ رہ سکتی ہوں؟ دنیا میں ہر ایک ذی حیات چیز صرف پانی ہی کی وجہ سے زندہ ہے، اس لیے میں پانی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میں بلا وادی میں کیسے جا سکتی ہوں؟ اس لیے میں سی مرغ کی بھی تلاش میں حصہ نہیں لے سکتی، کیونکہ ہدہد کے قول کے مطابق سی مرغ کا آشیانہ خشک وادیوں میں ہے۔ جس شخص کا دین و مذہب پانی ہو وہ بلا سی مرغ سے کیسے دوستی رکھ سکتا ہے، کیونکہ سی مرغ تو خشکی کا جانور ہے۔ ہدہد کا بطخ کو جواب۔ ہدہد نے بطخ سے کہا کہ اے وہ جو پانی پر عاشق ہے، پانی تیری جان پر آگ کی طرح مسلط ہے، یعنی تو پانی کے عشق میں گرفتار ہے اور ایک روز پانی تجھے آگ کی مانند جلا کر خاک کر دے گا۔ پانی کی ضرورت تو ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن کا منہ غلیظ اور ناپاک ہوتا ہے۔ بس اگر تیرا منہ پاک و صاف نہیں ہے تو پانی کی تلاش کر، ورنہ اگر تو پاک ہے تو میرے ساتھ چل۔ پانی تیری عزت و آبرو کو تباہ کر دے گا اور پانی کا صرف ایک قطرہ تیری عزت گنوانے کے لیے کافی ہے۔ جب تک کہ غلیظ لوگوں کے چہرے پانی کی طرح چمکدار اور روشن رہتے ہیں، اس وقت تک ان کے چہرے دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ حکایت ایک شخص کے دیوانے سے سوال کرنے کی۔ ایک شخص نے ایک دیوانے سے سوال کیا کہ تیرے خیال کے مطابق یہ دونوں جہان کیا چیز ہیں؟ دیوانے نے کہا کہ یہ دونوں جہان جو اس قدر بلندی و پستی پر مشتمل ہیں، ایک پانی کے قطرہ کی طرح ہیں۔ ان کو ہم ہستی میں شامل کر سکتے ہیں، نہ انہیں نیست کہہ سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح پانی کا قطرہ بیکار ہوتا ہے، اسی طرح یہ دونوں جہان کسی کام کے نہیں۔ اول دن سے یہ ایک پانی کا قطرہ دنیا میں اتنے خوبصورتیوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ ہر خوبصورت انسان اسی پانی کے قطرے سے بنا ہے۔ اگر یہ لوہے سے بنتا تو اس قدر حسین و خوبصورت نہ ہوتا۔ دنیا میں خیال کر کے دیکھ لے، کوئی چیز لوہے سے زیادہ سخت نہیں ہے، لیکن پانی میں لوہا گل جاتا ہے۔ جس چیز کی بنیاد پانی پر ہوتی ہے، خواہ اس کی طاقت آگ جیسی زبردست کیوں نہ ہو، لیکن حقیقت میں وہ چیز بے بنیاد ہوتی ہے۔ کسی شخص نے پانی کو دیر پا نہیں دیکھا۔ پانی پر کسی چیز کی بنیاد مضبوطی سے قائم نہیں رہ سکتی۔ تیتر کا عذر پیش کرنا۔ تیتر خوشی خوشی چلتا ہوا آیا اور پہاڑ میں سے سرکش اور مستانہ وار برآمد ہوا۔ اس کی چونچ سرخ تھی اور اس نے ایک چغا پہنا ہوا تھا، اور جوش و خروش میں اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا، یعنی اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کبھی تو یہ پہاڑ کے دامن پر اڑتا تھا اور کبھی پہاڑ کی چوٹی تک اڑتا ہوا چلا جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ہمیشہ کان میں رہتا ہوں اور میرا مسکن ہمیشہ سے
जवाहरात की कान में रहा है। मैं हमेशा पहाड़ के दामन में रहा हूँ, इसलिए मैं जवाहरात का मुहाफिज और पासबान हूँ। जवाहरात के इश्क ने मेरे दिल में आग लगा दी है। बस ये जवाहरात के इश्क की आग ही मेरे लिए काफी है। जब मेरे दिल से इन जवाहरात के इश्क की आग निकलती है तो मेरे संगरेजा यानी मैदा में एक पोटली होती है जिसमें जाकर ग़िज़ा हजम होती है। उसे संगदाना कहते हैं। तक को खून बना देती है। इन जवाहरात को देखने की ख्वाहिश पत्थरों तक को खून कर देती है। यानी मैं इस कदर बेकरार होकर खून के आंसू रोता हूं कि ये पत्थर सख्त हो जाते हैं। इन पत्थरों की आग के दरमियान मैं पड़ा हूं, जवाहरात के इश्क में गिरफ्तार हूं। मैं निहायत परेशान और बिल्कुल बेकार हूं। मैं इस हालत रंजो गम में पत्थर के टुकड़े खाता हूं। मेरे दिल में आग सी लग रही है। मैं पत्थरों पर सोता हूं, यानी बेकरार और बेचैन रहता हूं। ऐ मेरे दोस्तों, मेरी हालत को देखो और मेरे खाने पीने और रहने सहने के हालात पर गौर करो कि मैं किस कदर बेचैन रहता हूं। जो शख्स के पत्थर खाता हो और पत्थरों पर सोता हो, क्या ऐसा शख्स तेरे साथ इस जंग यानी सीमुर्ग की तलाश में शरीक हो सकता है? मेरा दिल इस मुसीबत में तड़प रहा है क्योंकि जवाहरात के इश्क ने मुझे पत्थरों में कैद कर दिया है। जो शख्स जवाहरात के अलावा किसी और चीज को महबूब रखता है वो उस महबूब चीज को छोड़ सकता है, मगर मैं जवाहरात तर्क नहीं कर सकता। जवाहरात का इंतजाम बहुत बाकायदा है क्योंकि ये सिर्फ पहाड़ों ही में मिलते हैं। मैं तो जवाहरात के इश्क में जवाहरात की खाक बन गया। मैं एक मिनट के लिए भी पहाड़ से जुदा नहीं हो सकता। टैगो कमर से मुराद टैग को यानी पहाड़ की चोटी और कमरे को है यानी दामने को। क्यों? जवाहरात हमेशा पहाड़ों पर ही मिलते हैं, इसलिए मैं उन्हें पहाड़ों की चोटियों पर तलाश करता फिरता हूं। आज तक मुझे जवाहरात जैसा कोई माशूक नहीं मिला और ना कोई जवाहरात से ज्यादा खूबसूरत महबूब दिखाई ही दिया। चूंकि सीमुर्ग को तलाश करने का काम बहुत कठिन और मुश्किल है। मेरे पांव पत्थरों की कैद में है और जवाहरात का इश्क मेरे दिल पर मुसल्लत है। मैं सीमुर्ग जैसे बहादुर परिंद के पास किस तरह जा सकता हूँ? मैं ऐसा कठिन काम कैसे कर सकता हूँ? मैं आग की मानिंद पत्थरों से अपने दिल को नहीं हटा सकता। या तो मैं मर जाऊंगा या जवाहरात हासिल कर लूंगा। इंसान को चाहिए कि अपना असली जौहर जाहिर कर दे, वरना बगैर जौहर का इंसान किसी काम का नहीं होता। बेगौहर से मुराद मर्दे जाहिल और बेहुनर है। हुदहुद का तीतर का जवाब। हुदहुद ने कहा कि ऐ तीतर, तेरा रंग जवाहरात का सा खुशनुमा है, तू कब तक ऐसे उजर रंग पेश करता रहेगा? उस रंग से मुराद ऐसे उजर जो काबिले कबूल ना हो। खुदा करे कि तेरी चोंच हमेशा तेरे खूने जिगर में डूबी रहे और जवाहरात की तरह पत्थर बन जाए। जवाहरात की भला हकीकत ही क्या है? सिर्फ रंग बरंग के पत्थर हैं। तेरा दिल इन पत्थरों में फंस गया है। अगर जवाहरात का रंग ना हो तो मामूली पत्थर हैं। जिन जवाहरात का कोई रंग नहीं होता वो मामूली पत्थर कहलाते हैं। जिस शख्स को जरा सी भी अक्ल है वो इस रंग पर नहीं मरता, क्योंकि अक्लमंद और आली नस्ब इंसान बेइज्जती पसंद नहीं करता। अगर तू इसी तरह पत्थरों और जवाहरात में फंसा रहेगा तो तमाम उम्र इनकी कैद से आजाद नहीं होगा। किसी गौहर को इस कदर बुलंद मर्तबा हासिल नहीं हुआ जिस कदर के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी में जड़े हुए गौहर को हासिल था। वो रंग बहुत उम्दा रंग का था, अगरचे उसका रंग उड़ चुका था। नीम रंग, उड़ा हुआ रंग या मामूली रंग। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी की हिकायत। जबकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस गौहर को अपनी अंगूठी में जड़ लिया तो तमाम जमीन आपके हुक्म की ताबे हो गई। जबकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी सल्तनत इस कदर वसी देखी और तमाम दुनिया को अपना मुती पाया। आपका शामियाना 40 फरसंग का था। एक फरसंग 3 मील जितना होता है और ये जमीन के मुकाबला में नीम दांग, एक दांग 6 रत्ती के बराबर होता है। वो कत रखता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब मेरा मुल्क और तमाम कारोबार इस कदर वसी है और चूंकि इसकी इस कदर अजीमुशान वक़्त और इज्जत है, इसलिए ये जरूर पायदार और मजबूत होगा। मैं नहीं चाहता कि इसके बाद दुनिया और दीन में किसी के कब्जा में
इस कदर बड़ा मुल्क हो। ऐ खुदा, मैंने अपनी इन बाएतबार आंखों से इस कदर बड़े मुल्क की मुसीबतों और मुश्किलों को देखा है, लेकिन ये मुल्क आखिरत के मुकाबले में बहुत छोटा है। मेरे बाद इतना मुल्क किसी को मत दीजिए। मुझे इस मुल्क को दौलत और फौज से कोई गर्ज नहीं है। मैं थैलियां बुननी शुरू कर देता हूं। अगरचे इस गौहर यानी अंगूठी के नाग की वजह से सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह हो गए थे, लेकिन यही गौहर उनके रास्ता में हायल हो गया, यानी उनको हकीकी राहत और इत्मीनान नसीब ना हुआ। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दूसरे नबियों के 500 साल बाद बहिश्त में तशरीफ ले गए, यानी मर गए। ये गौहर जबकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से इस कदर बुराई कर सकता है, तो तुझे इत्मीनान और राहत कैसे बख्श सकता है? चूंकि जवाहरात पत्थर हैं, इसलिए उन्हें हासिल करने के लिए पहाड़ मत खोद और सिवाय माशूक हकीकी यानी सिमुर्ग की तलब के अपनी जान मत खो। ऐ जवाहरात को तलाश करने वाले, जवाहरात का ख्याल दिल से निकाल डाल। तू हमेशा जौहरी यानी खुदा को तलाश कर। परिंदों के इस मजमा के सामने हुमा आया कि जिसका साया बादशाह बख्शता था। आम अकीदा है कि जिसके सर पर हुमा का साया पड़ जाए वो बादशाह हो जाता है। हुमा एक ऐसा जानवर है कि जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, मगर कदीम रिवायात के जरिए उसका नाम बहुत मशहूर है। हुमा बहुत बाबरकत था क्योंकि सबसे ज्यादा बाहिम्मत था। हुमा का उज़्र पेश करना। हुमा ने कहा कि ऐ खुशकी और तरी के परिंदों, मैं दूसरे परिंदों जैसा नहीं हूं। मैं बहुत आली हिम्मत हूं, इसी वजह से मैं तमाम दुनिया से अलहदा रहता हूं। बादशाह की तरफ से मुझे जो नूर अता हुआ है, यानी मेरे साया से लोग बादशाह बन जाते हैं, इस दुनिया में मेरे लिए यही काफी है। मैं अपने कुत्ते जैसे नफ्स को बहुत जलीलो ख्वार रखता हूं, यानी मैं खुद कभी बादशाहत की ख्वाहिश नहीं करता, बल्कि अफरीदों और जमशेद को इज्जत और बुजुर्गी मैंने बख्शी है। तमाम बादशाहों ने बादशाहत मेरे साया की वजह से हासिल की है और तमाम फकीर मेरे आरज़ूमंद हैं। अपने नफ्स को जो कुत्ते की मानिंद जलील है, मैं हड्डी खिलाता हूं। हुमा हड्डियां खाता है और इसी तरह अपनी रूह को नफ्स से निजात दिलाता हूं, क्योंकि मैं नफ्स को हमेशा हड्डियां खिलाता हूं, यानी जलीलो ख्वार रखता हूं। इसलिए मेरी रूह को आली मर्तबा और इज्जत मिली है। जिसका साया बादशाह पैदा करने वाला हो, उसके मर्तबा और इज्जत से कोई कैसे इनकार कर सकता है? तमाम लोगों को उसके हुक्म को मानना चाहिए ताकि उन्हें उसके साया यानी अजमत और इज्जत में जर्रा बराबर हिस्सा मिल सके। सीमुर्ग जो इस कदर सरकश परिंदा है, मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो लोगों को बादशाह बनाना ही काफी है। हुदहुद का हुमा को जवाब। हुदहुद ने कहा कि ऐ हुमा, तुझे तेरे गुरूर ने अंधा कर दिया है। तू इससे ज्यादा गुरूर मत कर और अपने आप पर नाजो फख्र मत कर। इस वक्त दुनिया में बादशाहों का हड्डियों की तरह निशान तक बाकी नहीं रहा। ऐ काश तू बादशाह न बना था और अपने आप को हड्डियों की खुराक से निजात दिला था। मैंने माना कि दुनिया भर के बादशाह इस वक्त तेरे साया की वजह से बादशाहत कर रहे हैं, लेकिन कयामत के दिन तमाम उम्र अपनी इस बादशाहत पर अफसोस करेंगे। अगर बादशाहों पर तेरा साया पड़ता है तो कयामत के दिन मुसीबत में भी तो वो गिरफ्तार होते हैं। हिकायत एक शख्स के सुल्तान महमूद को ख्वाब में देखने की। एक शख्स बहुत पारिसा और नेक था। एक रात उसने ख्वाब में सुल्तान महमूद को देखा। उसने पूछा कि ऐ बुलंद मर्तबा वाले बादशाह, अब तू किस तरह है? सुल्तान महमूद गजनवी ने जवाब दिया कि ऐ शख्स, इन बातों से मुझे हलाक मत कर, तू खामोश हो जा। इस जगह बादशाहों का हाल बहुत बुरा है। मैं बादशाहत की सजा भुगत रहा हूं। बस बादशाहत करना सिर्फ खुदा का ही हक है। खुदा दुनिया का बादशाह है और बादशाहत उसी के लिए मुनासिब है। जब यहां मैंने अपनी आजिज़ी और परेशानी देखी तो अब मुझे अपनी बादशाहत से शर्म आती है। अगर तू चाहे तो मुझे परेशान हाल कहकर खिताब कर, लेकिन सुल्तान खुदा ही है। तू मुझे सुल्तान मत कह, बल्कि खुदा को बादशाह कह। बादशाहत के काबिल तो खुदा ही है। मैं इससे कहीं बेहतर हाल में होता अगर दुनिया में मुझे
फकीर बना दिया जाता, यानी फकीर होना बादशाही से बेहतर है। ऐ काश मेरा कोई मर्तबा और इज्जत न होती और बादशाह होने की बजाय मैं फकीर और खोशा चीन होता। अब मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालने वाला कोई भी नहीं है। मेरे एक एक खून यानी कत्ल का हिसाब मुझसे तलब किया जा रहा है। खुदा करे कि उस हुमा के बाजू सूख जाए कि जिसके साया की वजह से मैं बादशाह बन गया था। बाज का उज़्र पेश करना। परिंदों के जलसा में निहायत फख्र के साथ बाज दाखिल हुआ और अपने दिल के राजों को सब पर खोला। बाज अपने बुरे अमाल पर बहुत मगरूर था और उसे अपनी ताकत और इज्जत पर बहुत घुमंड था। बाज ने कहा कि मैंने बादशाह की इज्जत अफजाई की वजह से तमाम दुनिया की तरफ से आंखें बंद कर ली हैं, क्योंकि बादशाह की इज्जत अफजाई की वजह से तमाम दुनिया की तरफ से आंखें बंद कर ली हैं, क्योंकि बादशाह मेरी इज्जत करता है। इसलिए मैं इस गुरूर और नखूत में किसी की परवाह नहीं करता। मेरी आंखें इसलिए टोपी के अंदर बंद हैं कि मेरे बैठने का मुकाम बादशाह का हाथ है। बाज के सर पर टोपी चढ़ाकर बादशाह चमड़े का दस्ताना पहनकर बाज को हाथ पर बिठाते हैं। मैं बहुत बाअदाब हूं, यानी मुझे बादशाहों की महफिल के कायदों का इल्म है और रियाजत करने वालों की तरह मैंने बहुत मुद्दत तक रियाजत की है। अगर मुझे बादशाह के पास ले जाएं तो मुझे अदाब महफिल सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं शाहाना रसूम व अदाब से वाकिफ हूं। मैं तो सीमुर्ग का ख्याल ख्वाब तक में नहीं ला सकता, फिर भला मैं फजूल उसकी तलाश में परेशान क्यों फिरूं। मेरे बादशाहों के हाथ से ग़िज़ा खाना ही काफी है और इस दुनिया में मेरे लिए इस कदर इज्जत और मर्तबा काफी है, क्योंकि मुझ जैसी इज्जत किसी और को हासिल नहीं है। इसलिए मुझे बादशाह के हाथ पर बिठाकर बड़ा मर्तबा दिया जाता है। अगर मैं बादशाह की सोहबत के काबिल हो जाऊं तो ये इससे बेहतर है कि मैं सिमुर्ग की तलाश में वादियों में टक्करें मारता फिरूं। मुझे उम्मीद है कि मैं बादशाह के हाथ पर खुशी और मुसर्रत में अपनी उम्र खत्म कर दूंगा। कभी तो बादशाह मेरा इंतजार करता है, यानी जब मैं शिकार करने उड़ता हूं तो बादशाह मेरा मुंतजिर रहता है और मैं कभी बादशाह को खुश करने के शौक में शिकार मार कर लाता हूं। हुदहुद का बाज को जवाब। हुदहुद ने कहा कि ऐ बाज, तू हकीकत के खिलाफ मजाज में फंस गया है। तेरी सूरत कुछ और है और तेरा ज़मीर कुछ और कहता है। अब तू काबिल एतबार नहीं रहा। अगर हमारे बादशाह यानी सीमुर्ग जैसा कोई और इस दुनिया में होता तो फिर सीमुर्ग बादशाही के लायक ना रहता। सिवाय सीमुर्ग के कोई और बादशाहत के काबिल नहीं है, क्योंकि बादशाहत उसी हस्ती के लिए ज़ेबा है जो कि अपनी मिसाल नहीं रखती। वो बादशाह नहीं हो सकता जो हर मुल्क में अपनी बेवकूफ़ी की वजह से एक नया सर बना लेता है, यानी जो हर जगह पाया जाता है या आम होता है। अगर दुनिया का बादशाह कभी वफा भी करता है तो किसी दूसरे वक्त जुल्म भी कर जाता है। बादशाह वही है कि जिस जैसा कोई और ना हो और सिवाय वफा और हमदर्दी और सखावत के कुछ ना करे। दुनिया के बादशाहों से जो शख्स करीबतर होता है उसकी जान हमेशा खतरा में रहती है। बादशाह बाज औकात नाराज होकर अपने मुलाजमीन और करीबी दरबारियों और नदीमों को कत्ल कर देते हैं। हकीकत में दुनिया के बादशाहों की मिसाल आग की सी है। तू इनसे दूर भाग, क्योंकि आग से दूर ही रहना बेहतर है। इसलिए बादशाहों से दूर रहना चाहिए और बादशाहों से दूर ही रहना मुनासिब है। एक बादशाह के अपने गुलाम पर आशिक होने की हिकायत। एक बहुत बड़ा बादशाह था। वो अपने खूबसूरत गुलाम पर आशिक हो गया और इस कदर आशिक हुआ कि उस गुलाम के बगैर ना एक लम्हा के लिए इत्मीनान से बैठता था, ना उसे चैन पड़ता था। दूसरे गुलामों की निस्बत उस गुलाम को ज्यादा अच्छी तरह रखता था और उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखता था। बादशाह जब किला में से तीर मारता था तो ये गुलाम डर के मर जाता था, क्योंकि बादशाह हमेशा एक सेब का निशाना बनाता था और उस सेब को गुलाम के सर पर रखता था। बादशाह उस सेब के उसी वक्त 2 टुकड़े कर देता था और ये गुलाम डर के मारे बीमार और कमजोर शख्स की तरह कांपने लगता था। उस गुलाम से एक नावाकिफ शख्स ने पूछा कि तेरा सुर्ख चेहरा अब सोने की मानिंद जर्द क्यों है? तेरी बादशाह की नजरों में इस कदर इज्जत है, फिर बता कि तेरे चेहरे का ये हाल क्यों हो गया? गुलाम ने कहा कि बादशाह मेरे सर पर सेब रखता है। मुमकिन है कि इस सेब की वजह से किसी रोज मुझे कोई तकलीफ पहुंचे।
مجھے اس کی غلامی سے کوئی انکار نہیں ہے۔ بادشاہ کی تمام فوج میں اب کوئی مجھ جیسا کمزور شخص نہیں ملے گا۔ اگر کسی روز ایسا اتفاق ہوا کہ تیر سیدھا آیا اور مجھے ہلاک کر گیا تو تمام لوگ کہیں گے کہ بادشاہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ میں اس غم میں گل گل کر مر رہا ہوں اور میری جان پر یہ خطرہ سوار ہے۔ بغلا کا عذر پیش کرنا۔ اس کے بعد جلدی سے بغلا آگے بڑھا۔ اس نے کہا کہ اے پرندو، میں بیمار ہوں، ہمیشہ میں دریا کے کنارے پر رہتا ہوں، کوئی میری آواز تک نہیں سنتا، میری وجہ سے دنیا میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، میں دریا کے کنارہ اپنی مصیبت میں بیٹھا رہتا ہوں، میں ہمیشہ غمگین اور تکلیف میں پھنسا ہوا ہوں، پانی کی آرزو سے میرا دل خون ہو جاتا ہے، مجھے اپنی حالت پر افسوس آتا ہے، میں کیا کروں؟ مجھ میں دریا میں داخل ہونے کی ہمت نہیں ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں دریا کے کنارے پیاسا مر جاؤں گا، اگرچہ دریا میں سے ایک قطرہ پانی میں کم ہو جائے تو غیرت کے مارے میں جل کر کباب ہو جاتا ہوں، میرے جیسے کے لیے تو دریا کا عشق ہی کافی ہے، اور میرے سر کے لیے دریا کے عشق کا جنون ہی بہت ہے، میں سوائے دریا کے عشق کے کوئی اور غم پالنا نہیں چاہتا، میں سی مرغ کے عشق کو برداشت نہیں کر سکتا، خدا مجھے اس سے پناہ ہی میں رکھے، جس کی حقیقت ہی پانی کا ایک قطرہ ہو وہ بلا سی مرغ سے وصل کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یعنی میں بہت حقیر جانور ہوں، میں سی مرغ کی تلاش میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ہدہد کا بغلا کو جواب۔ ہدہد نے بغلا سے کہا کہ تو دریا سے ناواقف ہے، دریا میں مگرمچھ اور بہت سے جانور رہتے ہیں، کبھی تو اس کا پانی نمکین ہوتا ہے اور کبھی کڑوا، کبھی دریا میں سکون ہوتا ہے اور کبھی اس میں طوفان آتا ہے، دریا ہمیشہ بدلتا رہتا ہے اور یہ پائیدار نہیں ہوتا، کبھی آگے بڑھتا ہے اور کبھی واپس آتا ہے، بہت سے جواں مردوں سے یہ لڑا ہے اور انہیں نگل گیا ہے، جو کوئی بھی اس کے طوفان اور بھنور میں گرا بس وہ مر ہی گیا، اور جو غوطہ خوروں کی طرح اس میں کودا تو اسے اپنی جان کو خوف رہتا ہے، اگر کوئی سمندر کی گہرائی کا مقابلہ کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ مر جاتا ہے اور سر کے بال خس یعنی تنکے کی طرح اس کی سطح پر تیرتا نظر آتا ہے۔ ایسے سمندر سے کس کو وفا کی امید ہو سکتی ہے اور کون شخص اس سے دوستی کی امید کر سکتا ہے؟ اگر تو سمندر میں سے کنارہ تک نہیں آ سکتا تو آخر کار تو غرق ہو جائے گا، یعنی سمندر کسی کی مدد نہیں کرتا، سمندر اپنے شوق اور جوش و خروش میں ہاتھ مارتا ہے، سمندر کو جب کہ خود دل کی مراد نہیں ملتی، سمندر کو خود اطمینان قلب نصیب نہیں، اسی لیے دن رات شور مچاتا ہے، تو پھر اس سے تجھے بھی دل کا آرام نہیں مل سکتا۔ سمندر یعنی سی مرغ کے کوچا کا ایک معمولی چشمہ ہے، تو پھر تو سمندر پر ہی کیوں قناعت کرتا ہے؟ خود سی مرغ کو دیکھ کہ کس قدر بلند و اعلیٰ ہستی ہے۔ ایک آدمی کے دریا سے سوال کرنے کی حکایت۔ ایک شخص کو دیکھا گیا کہ وہ دریا میں اترا اور دریا سے پوچھا کہ اے دریا، تو نیلا لباس جو غم کی نشانی ہے کیوں پہنے رہتا ہے؟ تو نے ماتمی لباس کیوں پہنا ہے؟ اگرچہ تیرے پاس آگ نہیں ہے لیکن تو آگ کی مانند جوش کیوں کھا رہا ہے؟ دریا نے اس صاف دل انسان کو جواب دیا کہ مجھے اپنے معشوق کا افسوس ہے، چونکہ میں اپنی کم ہمتی کی وجہ سے اس کی دوستی کے قابل نہیں ہوں، اس لیے میں نے اس کے فراق میں اپنا لباس نیلا کر لیا ہے، میرے لب بے ہوشی کی وجہ سے خشک نہیں ہے بلکہ میں اس کے عشق کی وجہ سے اس قدر شور و غل مچا رہا ہوں۔ اگر مجھے میرے معشوق کے کوثر بہشت کا ایک چشمہ جہاں مراد ہے معشوق کے دہن سے ایک قطرہ بھی مل جائے تو میں اس کے دروازہ پر پڑا رہوں اور مجھے بقائے دوام حاصل ہو جائے، ورنہ مجھ جیسے ہزاروں حیران و پریشان عاشق اس کے عشق میں اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں، یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔